2005 onwards when we conducted first annual days in our IIW Chennai branch in Chennai Trade Center, R&D institutions. Not only that, I have also seen many young students, they are coming and their presentations are fantastic. So this indicates that what is the quality of our paper which we discusses in this technical seminar. So I think let us all congratulations goes to that organizing committee who has tried their best to attract and to bring the best paper from these places available. But though I have seen that, but when I look the statistics of entire picture, I am just seeing that there are papers which is not distributed uniformly across the country. They attended this 3-day event and presented very good quality papers. So that credit goes to all youngsters and their mentors for motivated them for attending this National Welding Seminar. That is one. Another important thing is as far as this National Welding Seminar is concerned, we have tie-up with the Welding International. Welding International is the one which has been affiliated with Taylor and Francis. So a formal mail will be issued through the organizers. Published in India, that also you should not forget. It is Indian Welding Journal. Habitually, I am also the chief editor of this journal. So those who are interested, they should submit the papers here in Indian Welding Journal. You see that if you open the www.iwindia.com, this website of the Indian Institute of Welding, you will find one menu of IWJ, that is Indian Welding Journal. There, freely you can download the latest issue. So I think now you can download the July 2024 issue. October 2024 issue is published. It is hard copy is already there in the IW India stall here. I think next week it will be going up. It is already there. It is already uploaded. So you can easily download the papers, full volume actually, through a flip book format. So this is one thing that you can get it free, and somebody can subscribe, somebody can get the membership, and they can go to the membership profile and you can download the previous issues also. IAW Jamshedpur branch. So that is the foremost. And then, as many people pointed out, the content is good. And the third one is the registration fee. So so compared to the previous National Welding Seminar, it is very, very low. So that's why many participation, many new faces we are seeing it today. I request the other branches also, even so next year or who are organizing the National Welding Seminar, please keep it. In them, so many papers I have seen, people those are working in them. The only problem, a little problem I face, because there are many parallel sessions for them because of the numbers of paper maybe. So if it is possible to streamline one kind of study in a single panel, it will be much better in future. That is a little suggestion. That's it. Thank you. Now I have been shifted to UAE, but it was my desire to present a paper in National Welding Seminar. So I took this opportunity and I came here to present the paper. And just to add, today I took the lifetime membership of the IIW. It was very good, and the technical papers were also good. And from industries also, I can see that I have attended many of the sessions, and I can see that papers were good. And overall, the journey, if you see for the past 1 year for us as a youngster in association with IIW, it is very, very fruitful and very good. So a lot of knowledge transfer is also happening, and networking is also one. Whoever the people who have been giving the presentation and speakers, they have been maintaining the time. Like yesterday also I have seen there are 7 presentations, 7 speakers, and they have all been doing within say 13 minutes, 12 minutes, 30 minutes like that, and there is sufficient time for questioning also. National Welding Seminar at Jamshedpur is going down. I am leaving this place with a lot of colorful memories, because the hospitality as given by the organization is fantastic. We enjoyed, I enjoyed, I think all the people are enjoyed the vicinity, and it is a
an art place for such a seminar, because you got a good auditorium, good place for exhibition also. It's a place. It's a very convenient place. I attended 2014 seminar here in the same venue. After that 10 years I am coming here. So I enjoyed one speciality is all the technical papers have got tremendous contents, because I evaluated so many talks. I could see contents are very rich contents. नेशनल वेल्डिंग सेमिनार का आज क्लोजिंग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसमें नए नए शोध, नए नए इन्वेंशन और नए नए कंपनी अपनी वेल्डिंग रिलेटेड प्रोडक्ट लेके आई। तो सवाल यही होता है सर डॉक्टर ओके नो अच्छा ओके सर क्वेश्चन इज द कि वेल्डिंग आने वाला वेल्डिंग इज द 10-5 ईयर में वेल्डिंग का फ्यूचर क्या है इंडियन इकोनॉमिक इंडियन इंडस्ट्री। That is what we yesterday discussed. The welding industry has got a very bright future. In career-wise, young people can get a lot of jobs, because our country is developing, and our government's aim is to be a superpower by 2047. In that, welding has got a very, very relevant part to play, because as we yesterday talked, our steel production will be going up by 2030 by 350 million tons. For consuming this much huge quantity of steel, welding process is the only method to consume the steel. So you can see the present steel production in the country is 140 million tons. So double the production we are going to achieve by 2030. So you can see the 50% growth, or no, maybe 100% growth within 6 to 7 years. That is why we are telling there is a tremendous scope of progress in this country in the welding because of the steel production. We have to consume all the steel which we are going to produce. सर क्वेश्चन इज द वेल्डिंग तो मेटल में होता है, लेकिन क्या वेल्डिंग का वैरायटी अभी सेक्टर चेंज हुआ? क्योंकि आपके पास जो प्रेजेंटेशन हुई इसरो के भी आए थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च के भी आए थे। क्या वेल्डिंग अब क्या मेडिकल साइंस में भी पॉसिबल हो रहा है किसी विषय में? अगर जानकारी है तो बताइए। देखिए, सबसे पहला है कि वेल्डिंग जो है वो एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है। अगर आप मेडिकल में इसकी तुलना करेंगे तो स्किन कट करने के बाद भी नेचर अपने आप वेल्डिंग कर लेगी। ओके, हमारा जो आपने कहा पूछा कि प्रोसेस वेल्डिंग की वही है। अब जो है टेक्नोलॉजीज को और कैसे इम्प्रूव और एडवांस हम बनाए, उसके लिए ऑटोमेशन है, रोबोटिक है, लेजर क्लैडिंग लेटेस्ट में जो चल रहा है, लेटेस्ट लेजर वेल्डिंग वगैरह, उनका उपयोग करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। जो हम वेल्डिंग करते हैं उनमें हमको 1 घंटा लगता है करने में, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब हुआ कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट को अगर इन चीजों से जोड़ दें, एआई हुआ, रोबोटिक हुआ या डिजिटलाइजेशन कर दें, ऑटोमेशन कर दें, तो वही काम मेरे 10 मिनट में मैं निपट। ठीक है, तो निपटने का मतलब हुआ कि प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब है एनी कंट्री में फैब्रिकेशन और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी तो इकोनॉमिकली यू विल बी डिपेंडेंट कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट होगा तो आपका देश राइज करेगा। थैंक यू सर। सर हमने आपका देखा कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। इंटरनेशनल वेल्डिंग इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग IIW, वी आर द मेंबर सोसाइटी। तो हमारा एवरी ईयर उन लोग का एनुअल असेंबली होता है। इंडिया में हुआ था 2011 में, एवरी ईयर डिफाइंड कंट्री। इस बार होगा इटली में, जेनोवा में। जेनोवा इटली का एक सिटी, उसका एक वीडियो दिखा है। बट हम दूसरा कुछ आपको बोलना मांगता, जो खाली हम लोग इधर उधर इटली किया ऐसा नहीं है। व्हाट वी आर डूइंग, मेडिकल के बारे में बोला, मेडिकल का छोटा मोटा जो चिप होता है ना, उसका भी वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग से होता है। 1 नंबर। 2 नंबर है जो खाली वेल्डिंग होने से नहीं होगा, हमको इसके लिए स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, जो जिधर जिधर वेल्डर है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, ये लोग को स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग बहुत सारा कोर्स रखा है, सो दैट द इंडस्ट्री कैन गेट
proper welder, proper welding trainer and all these things. So that is the most important. Everywhere in the world there is a shortage of skilled welder. So that we are trying. सर ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सभी आपका ही नहीं, बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े एमडी भी इस चीज का बोलते हैं कि इंडिया में टेक्निकल की कमी है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। क्या कारण है कि वेल्डिंग जैसे क्षेत्र में यंग लड़के कम आते हैं, दूसरे आईटी में चल जाते हैं, प्रोफेशनल में चल जाते हैं, मेडिकल में, वेल्डिंग जैसा इतना अच्छा सेक्टर में क्यों नहीं जा सकते? दो चीज है इसमें। वेल्डिंग आप पहले एक बता दिया ना, वेल्डिंग क्या है, सब क्या सोचते हैं, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, द यूनिवर्सिटी, हमारा जो AICTE जो है, इन्होंने वेल्डिंग ट्रेड के लिए सेपरेटली बीटेक का कोई डिग्री नहीं रखा है। तो क्या होता है ना, वो हम लोग कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करता है, कुछ करता है, उसके वेल्डिंग में जाता है। बट एक सेपरेट ब्रांच होना चाहिए, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, व्हाई नॉट वेल्डिंग इंजीनियरिंग? बिकॉज हमारा एक छोटा सा पिन से लेके आपको स्पेस क्राफ्ट, एवरीवेयर वेल्डिंग इज रिक्वायर्ड, एवरीवेयर। विदाउट वेल्डिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इस विषय में क्या गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन UGC से आप लोग का कुछ बात हुआ कि इसको अच्छा फॉर्मेट है? ये तो हम लोग हर सेमिनार में बोलता है हम लोग का, नॉट ओनली अस, अदर यूनिवर्सिटीज आर आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस। बट ये जब तक नहीं होगा तो प्रॉपर वो लोग को जो मोटिवेशन वो चाहिए। हम लोग अपना तरफ से जैसे कर सकते, अभी आप देखा कितना यंगस्टर्स आया, तो ये हम लोग मोटिवेट करते हैं बोल के आया ना। इंडिया जो वेल्डिंग इंडस्ट्री है, जिस प्रकार आप लोग सेमिनार कर रहे हैं, क्या हमारे देश वर्ल्ड के किस लेवल में जाता है? इतने बड़े टेक्नोलॉजी, इतने बड़े सेमिनार में हम लोग के पास क्या पावर है कि हम लोग वेल्डिंग में सबसे हीरो, मतलब सुपर पावर बन सकते हैं? वेल्डिंग नहीं है, आपको जिधर चाहिए सब जगह में इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन वेल्डर्स, इंडियन ऑल द इंडियन लेबरर्स, इंडियन मैनेजर्स, एवरीवेयर इट इज देयर। And you know, for the not only for the software, IT, everywhere. So Indians are dominating. So it is there already. किसी भी देश में आप जाएं, वो जितने भी वेल्डर और इंजीनियर से रिलेटेड मिलेंगे, ये दावा है कि 60 to 70% इंडिया के ही मिलेंगे। तो यूरोप में थोड़ा कम है, बट मिलेंगे आपको इधर के। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में वेल्डिंग के लिए कितना अपॉर्चुनिटी है। दूसरा बात, सर ने बताया कि क्योंकि हमारे लिए वेल्डिंग का पूरा नीचे से ऊपर तक पढ़ने के लिए बीटेक, तो फर्स्ट ईयर से पढ़ाई नहीं होती है, लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में घुसते हैं, लोग कहीं से डिप्लोमा कर लिया। लेकिन फिर भी आप हिंदुस्तानियों का ये कद्र कीजिए कि इतना ही पढ़ाई में बहुत कुछ उन्होंने कर दिया है। सर एक चीज कि हमारे व्यूवर से जो बच्चे मैट्रिक पास कर रहे हैं, इंटरमीडिएट पास कर रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेल्डिंग में, तो उनके लिए बहुत बड़ा I cannot say that you please come to join in welding. Suggestion. They have to think by themselves what they like best. It is not हम लोग वेल्डिंग से है बोल के जो वेल्डिंग में आ जाओ, ऐसा नहीं। What they like best, they have to go there. उसके अंदर हम लोग को जिसमें मोटिवेशन होता है, आदमी लोग आता है तो वेल्डिंग में, दैट इज गुड फॉर इंडस्ट्री, गुड फॉर अस। ओके, सम पीपल नाउ, अर्लियर ये जो इतना स्टूडेंट देख रहे नहीं होता था, वो जो कोई बोला अभी, जो सीनियर लोग पेपर प्रेजेंट करते थे पहले, अभी क्या है, अभी यंगस्टर लोग पेपर प्रेजेंट करते थे। देयर इज सम grown interest for welding, because welding is not only now जलाई, वो ग्रिल वाला नहीं है अभी, it has gone a long distance. आप इधर बैठ के you can control welding, if it is in Delhi welding, somebody is doing welding, you can control from here now, that where we are now. देखिए कितना महत्वपूर्ण सर ने कहा कि आप यहाँ वेल्डिंग अगर आपका दिल्ली में हो रहा है और आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कितना हाई हो चुका है, और समझ सकते हैं कि वेल्डिंग जैसा क्षेत्र में जिसकी ओपनिंग आप पता लगा सकते हैं कि आम आदमी या आम स्टूडेंट यही समझ सकता है कि ग्रिल का वेल्डिंग और मेटल टू मेटल वेल्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले समय में वेल्डिंग अपना वह पोजीशन बना सका है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इसरो को भी वेल्डिंग की जरूरत है, और नेवी को भी वेल्डिंग की जरूरत है, टाटा स्टील को भी जरूरत है, और सभी को जरूरत है। सब इंजीनियरिंग स्ट्रीम का भी है इसलिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलिए, AI इंजीनियर बोलिए, सब मेटलर्जी, सब जरूरत है। अब रोबोटिक करेगा तो प्रोग्राम कौन करेगा? तो बोलते हैं ना, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल
हो सकता है कि आप थ्योरिटिकल का डिग्री बहुत ले लें, लेकिन प्रैक्टिकल में वेल्डिंग का मुकाबला कोई नहीं। तो आपके पास एजुकेशन है डॉक्टरेट डिग्री का, तो वेल्डिंग का भी जरूर आप प्रैक्टिकल लीजिए, नॉलेज लीजिए। यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आने वाला समय में दूसरी सिटी में हो या जमशेदपुर में हो, अगर हमें जानकारी होगा तो हम करेंगे, लेकिन आने वाले देश की इकोनॉमी के लिए, आने वाले यूथ के लिए ऐसा सेमिनार बार बार होना चाहिए। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।